Hello everyone. In the previous class, the subject business study, we learn joint Hindu family, meaning of joint Hindu family and characteristics of joint Hindu family. So we will start it. Today's the topic advantage and disadvantage of joint Hindu business. Joint Hindu family business. The main advantage of joint Hindu family as are follows. First, no legal formalities. Second, liberty of business. Third, freedom of decision. Then next, management and operation. Next, direct contact with customer. Then next, economical. Then next facility to loan. First, no legal information, no legal formalities. Actually, like sole traders at joint Hindu family business can be established without and legal formalities. It can be started and dissolved anytime with the consent of the members of the family. ये जो एकाकी व्यापार है उसी तरीके से जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसको कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी एंड कर सकते हैं. ओके. देन सेकंड, लिबर्टी ऑफ बिजनेस. द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली हैज़ अ फुल फ्रीडम टू चूज़ बिजनेस ऑफ हिज चॉइस. अपनी चॉइस के अनुसार बिजनेस को वो चूज़ कर सकता है. इट डज नॉट हैज़ टू कंसल्ट और टेक परमिशन फ्रॉम एनीबडी टू कमेंस अ बिजनेस. अपने फ्रीडम, उसको फ्रीडम है कि वो किसी भी प्रकार के बिजनेस को अपने चॉइस के अनुसार कर सकता है. देन नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ डिसीजन. लाइक सोल ट्रेडर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस रेस्ट. जैसे कि सोल ट्रेडर में भी ये हम लागू करते हैं. जस्ट लाइक सोल ट्रेडर्स के जैसे ही, लाइक सोल ट्रेड, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस रेस्ट विथ अ सिंगल पर्सन. द हेड ऑफ द फैमिली, ही मे आर मे नॉट कंसल्ट ऑफ अदर मेंबर्स बिफोर टेकिंग बाई एनी डिसीजन. किसी भी डिसीजन के लिए वो फ्रीडम है, वो अपना अकेला निर्णय ले सकता. फैमिली की का उसको डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस हेल्प हिम अ टेकिंग क्विक डिसीजन एंड फ्रूटिफाई द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस. त्वरित निर्णय ले सकता है वो. देन नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन. द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अफेयर्स इन द head of the family. At a time he may take suggestion or seek help of operation and management of his business. For example, when the head of the family is going abroad to the outgoing few days, the head of the going outside, when the head falls sick or in the undergoing a long medical treatment, then he can bestow the responsibility of the shoulders of the most capable member temporarily. अगर जो हेड होता है वो कभी बीमार पड़ गया या लंबे समय के लिए कहीं बाहर चला गया आउटसाइड, तो ऐसी स्थिति में जो और फैमिली मेम्बर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं. ओके. Then the next point, direct connect with customer. Just like the sole trader, the head of the joint Hindu family business remain in regular contact with the customer, and so he can observe the analyze the test and demand of consumers and try to provide them maximum satisfaction. Okay.
Then facilities are loaned due to the cases of unlimited liability. The head of joint Hindu family business can available easy from facility. The loan providers are aware of the cases and known that the liability of business. अगर ज़रूरत पड़ती है तो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो हेड होता है, चूँकि इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो अपने लोन को पेड करने के लिए किसी से भी गवर्नमेंट से लोन जो है वो ले सकता है, या जो प्राइवेट फैक्टर है उनसे वो लोन ले सकता है. ओके, तो टुडे वी एक्सप्लेन द टॉपिक एडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. ओके, disadvantage of joint Hindu family described to above the maintained disadvantage of joint Hindu family. There are certain disadvantages. So the main disadvantage as enlisted below. First, unlimited liability. Actually, sole traders and joint Hindu family business both are, the liabilities are unlimited. The head of the family one it help the head of take decision, and the other head prove disorders of for the head. The fear of the losses is the fear of loss of the entrepreneur to come टूवार्ड्स द बिजनेस. ये जो सोल ट्रेडर है और जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, दोनों के हेड का जो लाइबिलिटी होता है बेटा बहुत ही अनलिमिटेड होता है. लाइबिलिटी को पेड करने के लिए वो अपने जो प्राइवेट जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी उसमें यूज़ कर सकते हैं. देन लिमिटेड कैपिटल. द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज़ लिमिटेड टू द पर्सनल रिसोर्सेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. The family member have to depend upon the relative and close friends for capital with the. एक्चुअली ये लोग जो है, जो सोल ट्रेडर होता है या फिर जो जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड होता है, वो उसके पास जो कैपिटल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. वो अपने किसी फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से कैपिटल लेके भी अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाता है. दैट इज़ वाई लार्ज स्केल बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल जॉइंट हिंदू फैमिली में, इसलिए वो लार्ज स्केल का बिजनेस को पॉसिबल नहीं कर पाता. द नेक्स्ट अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, वही मैंने बताया कि द मेंबर इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड इज़ नंबर ऑफ देयर, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इज़ आल्सो लिमिटेड. तो चाहते हुए भी बड़े पैमाने के व्यापार को नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो कैपिटल है वो लिमिटेड होता है. Then next, hasty decision. The head can take decision related to his business promptly and without anybody consult. चूँकि इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो बहुत ही फास्ट होता है, hasty decision होता है, उतावला निर्णय होता है. Sometime such hasty decision result is profit, but sometime they become the cases of collapsing of the business. मतलब कभी कभी इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट कभी कभी इसके जो हैस्टी डिसीजंस होते हैं वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. लिमिटेड गुडविल लाइक सोल ट्रेडर. द एरिया ऑफ ऑपरेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is limited and so goodwill is also limited. Due to limited goodwill, sometime the head of joint Hindu family business finds difficulties in shoring loan from money heading institution, and so the plan of expenses of business, a new establishment or dream. तो ये हमने बच्चों आज देखा जॉइंट हिंदू फैमिली का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यानी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है. ओके, थैंक यू.